اور اس نے چلے ہی بات کی کہ کون سی نیکسٹ کوشچن. اگلا سوال، آیت اکمل کیا ہے اور کب نازل ہوئی اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ فرسٹ رو پہ ہمارے سیکنڈ رو. جی جی. اور کوئی موقع سب کو دیا جائے. آپ نے کہا anybody else? یہ جناب یہ فرسٹ. Only 2 candidates are participating actively. Yes, please. سب سے بیعت سب نے جا کے علی کے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، امیر المومنین کہہ کے بلایا بھی. لیکن 35 سال کے بعد جب لوگ تنگ آ چکے اور خلافت سے، تو پھر مولا علی کے در پہ اکٹھا ہوئے اور اتنی زبردستی کی کہ نہیں کہا گیا کہ نعمت بھی تمام کر دی ہے. دیکھیے جتنے بھی کائنات میں چاہے سورج چاند ہو، آسمان ہو یا زمین ہو، اگر یہ 14 ماہ. سوال ہے، آیے ولایت قرآن کی کس آیت کو کہتے ہیں جس کو رسول نے خطبہ غدیر میں حاکم، سرپرست، صاحب اختیار، رسول و امام علی علیہ السلام کو قرار دیا ہے؟ ہاں دیکھیے اس میں 4 آپشنز ہیں. پہلا سورہ نساء آیت نمبر 59، سورہ مائدہ آیت نمبر 55، سورہ مائدہ آیت نمبر 67، سورہ مائدہ آیت نمبر 55. ماشاءاللہ سے کوئی آیت نمبر آج سورہ نہیں جاننا چاہتا، لوگوں کو ویسے ہی آنسر پتا. یس پلیز بتائیں. پارٹیسپیٹ کر چکا ہے نئے لوگوں کو پہلے چاہنے کے بہت چھوٹی بچی 2 بچے. میک شور کہ سب کو موقع دیا جائے، تو جنہوں نے بتا دیا ہے وہ تھوڑا سا صبر سے کام لیں. وعلیکم السلام. سورہ مائدہ آیت نمبر 55. ماشاء اللہ، گریٹ. انہوں نے جواب دیا سورہ مائدہ کا آیت نمبر 55. اس میں ولایت کا اعلان ہے. 3 طرح کی ولایت کا اللہ اعلان کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھیں یہاں پہ مولا علی طرف سے 3 ولایتیں. اللہ ہمارا ولی ہے، رسول ہمارا ولی ہے، اور وہ ہمارا ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تو حالت رکوع میں زکوٰۃ اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ صرف اور صرف مولا متقیان حضرت اسلام کی ذات گرامی ہے. یس نیکسٹ کوسچن. اگلا سوال، خطبہ غدیر کے دوران اس اہم جملے میں جس میں کہا گیا ان اللہ مولائی و انا مولاکم من کنت فہذا علی المولا، یا من کنت مولا و فہذا علی المولا، میں مولا کے کیا معنی نکلتے ہیں؟ جواب کے آپشنز ہیں آقا، دوست، غلام، ولی یا سرپرست. بچہ پیلی ٹی شرٹ والا بات پر روشنی ڈالی تھی کہ اتنا بڑا جو یہ واقعہ اس کے لیے صرف لاجیکلی اگر انسان سوچے تو دوست بتانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہاں پر کچھ اور حقیقت جسے واضح کرنی تھی. جیسے میں نے بتایا 3 دن تک لگاتار آیتیں آتی رہی، جبرائیل اترتے رہے، لوگوں کو روکا گیا، نماز کو ڈیلے کیا گیا. فرسٹ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ڈیلے کیا. لاکھوں لوگ موجود تھے، سب کے کجاوے لے لیے گئے، ممبر بنایا گیا، لوگوں سے کہا گیا کہ رک جاؤ، جو جا چکے ہیں بلا لو، جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے انتظار کرو. اور پھر وہاں پہ اعلان کیا من کنت مولا و فہذا علی مولا. وہاں مولا کا مطلب دوست ہرگز نہیں تھا. جس نے علی کو مولا مانا ویسے جیسے رسول اللہ کا، تو اپنے آپ سے وہ پوچھے کہ رسول اللہ کا مولا اگر وہ مانتے ہیں دوست، تو جیسے جیسے آپ نے رسول اللہ کو دوست مانا ہوگا ویسے ہی آپ علی کو مولا مانیں گے. لیکن ہاں یہ یاد رکھیں کہ آپ کے اپنے ذوق کی بات ہے. آگا کہتے ہیں عقیل الغربی سبھی، تو آپ کے ذوق کی بات ہے کہ جیسا آپ نے رسول اللہ کو مانا ویسے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی المولا، اس کا علی مولا ہے. تو اگر آپ رسول اللہ کو دوست سمجھتے رہے تو علی کو دوست مانیے، اور رسول اللہ کا اگر مولا سمجھتے ہوں گے اپنے آقا تو علی کو آقا مانیے. تو سرپرست، ولی، ویری گڈ. نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. اگلا سوال 11ویں نمبر کا سوال ہے. 11واں سوال مجھے یاد ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی 11 نمبر سے منسوب. یہاں پہ دیکھتے ہیں غدیر میں مولا علی علیہ السلام کی تاج کشائی کس طرح ہوئی. آپشن میں دے رہا ہوں کیونکہ اس کو آپ اپنے سے فیل نہیں کر سکتے. پہلا، مخصوص تاج بنوا کر رکھا گیا، پہلا آپشن. دوسرا، سر پر پھولوں کا صحرا باندھا گیا، دوسرا آپشن. تیسرا، پیغمبر اکرم نے اپنا صحاب نامی امامہ علی علیہ السلام کے سر پہ رکھا. تیسرا، اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا گیا.
आधा इधर 4 ऑप्शन है। अभी गालिबन मेल सेशन से हो चुका है। हाँ एक बार हम जल्दी भी कर सकते हैं। देखिए बहुत पीछे एक बच्ची है गालिबन, ये बच्चा बहुत छोटा बच्चा, प्लीज उसके पास ये 4 ऑप्शन है। अस्सलामुअलैकुम। पैगंबर अकरम ने अपना साहब नानी आमार हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ बहुत बिल्कुल राइट आंसर प्लीज। यस नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज अल्तमर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके ग्रेट वेरी गुड माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 गदीर में औरतों ने किस तरह से मौला अलैहिस्सलाम की बैयत की? ये सेक्शन ऐसा है इसमें ये बच्चा आप लोग पीछे जा मेन सेक्शन से मैं माजरत चाहूँगा, मेन सेक्शन से मैं माजरत चाहूँगा और इसमें देखिए हाँ वो देखिए बताना चाहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। गदीर में औरतों ने मतलब पानी या शी इज ट्राइंग टू गिव द करेक्ट आंसर। और किसी कोई बच्ची वो बच्ची देना चाहती है? थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट है। थोड़ा सा इम्प्रूव करें, ये अधूरा है जवाब है। अस्सलामुअलैकुम। जो वहाँ के मर्द हज़रात थे तो उन्होंने मौला अली से हाथ पे हाथ रख के बैत की थी, और जो खवातीन थी टश्त में पानी रखा गया था, उस टश्त में मौला अली ने अपना हाथ रखा था, उसी हाथ में खवातीन ने भी हाथ पे रख के मौला अली की बैत की थी। माशाल्लाह बेहतर। सवाल को मैं कंप्लीट करता हूँ, हालांकि ख्वाज जी चुकी हैं इस इनाम को। देखिए इतना रखा गया, उसमें पानी भर दिया गया, बीच में एक पर्दा था खैमे में। तो होता क्या था, इमाम अली अलैहिस्सलाम इस साइड से उन्होंने हाथ डाल रखा था, उधर से खवातीन आती थी, अपना हाथ डालती थी, जाती थी। ये एक तरीका था, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम के कुछ उसूल है, कवानीन है, महरम नामहरम के भी मसाइल है, तो इसलिए इस तरह से बैत ली है खवातीन ने। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जवाब, जज़ाकल्लाह। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 है गदीर की मारिफत क्यों जरूरी है? बहुत बेहतर तरीके से जवाब हम चाहेंगे, कौन देगा? सवाल है गदीर की मारिफत क्यों जरूरी है? हम इमाम को मानते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। मौला अली को मानना, मौला अली की हिदायत का इकरार करना है तो ठीक है, लेकिन क्यों ज़रूरी है? ठीक है, मौला जो अली को मानते हैं, भाई उनकी विलादत में खुश होकर उनकी शहादत में गम मनाते हैं, क्या इतनी तक जरूर काफ़ी है? क्यों? ये बहुत अहम मसला है। जैसे कहा कि न किया तो कुछ न किया, अगर जो सुन रहा है ये तो वो मसले जवाब को दे। नहीं समझा तो फिर कोई दीन मुकम्मल नहीं हो सकती। बहुत सारी रसूल की हदीस है, छठे इमाम की हदीस है कि अगर अब जमाने के इमाम की मार्फत हासिल नहीं हुई तो दीन से गुमराह हो जाएगा, कुफ्र काफिर हो जाएगा। तो लिहाजा आप बताएं क्यों जरूरी है? गरीब की मारिफत क्यों जरूरी है? सवाल वाज़ेह है। आयत की पस मंजर में बताएं तो जवाब कंप्लीट हो जाएगा। गदीर की मारिफत इसलिए ज़रूरी है कि एक हदीस है, पाँचवें इमाम से सवाल किया गया कि दीन में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है? तो पाँचवें इमाम ने जवाब दिया कि दीन हो गया खमसा, मतलब दीन 5 खसलतों का नाम है: नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और विलायत अमीर कायनात। और फिर उसने सवाल किया कि मौला इसमें सबसे वज़नी क्या है? क्या अल्लाह की नमाज वज़नी है? तो इमाम ने फरमाया नहीं। क्या रोज़ा वज़नी है? तो इमाम ने फरमाया नहीं। क्या हज और ज़कात वज़नी है? तो इमाम ने फरमाया नहीं। तो उसने कहा, फिर इमाम ने कहा कि मौला अली की विलायत इन 5 खसलतों में से सबसे ज़्यादा वज़नी है, इसलिए कि बाकी जैसे रोज़ा बीमार न रखे, और नमाज सफ़र में कस्र हो जाती है, ज़कात गरीब न दे, हज पर गरीब न नहीं जाए, तो तमाम चीज़ों में तब्दीली हो सकती है। लेकिन विलायत अमीर कायनात वो है कि जो अमीर, गरीब, मुफलिस, नादार सब पर ज़रूरी है। और
अगर विलायत एक अहम मरहला है कि अगर विलायत नहीं है इंसान के पास तो उसकी नमाज रोज़ा हर ज़कात कुछ भी कबूल नहीं। और दूसरी बात की मारिफत, अपने वक्त के इमाम की मारिफत होना, जैसा कि रसूल इस्लाम की हदीस है कि अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल किए बगैर जो इंसान मर गया वो दौरे जाहिलियत की मौत होना। बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने इतना बेहतरीन जवाब दिया, माशाल्लाह जीते हैं। और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हदीस की रोशनी में जवाब दिया, जो कि एक अपने में अहम पैगाम है कि हमारे माशरे में बच्चा अवेयर रहता है अपने आइमा मासूम सलाम के अक़वाल के ज़रिए से पहुँचाई गई तालीमात, जिसे अगर अपने ज़िंदगी में अप्लाई किया जाए तो शायद हम हयात तजर्बा के नाम से पहुँच सकते हैं। दूसरा जो सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर 15, मैं 15 सवाल 15 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सवाल है कि गदीर के ऐलान पर किस मुनाफिक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ किया और उस पर क्या अज़ाब नाज़िल हुआ? सवाल जी, सवाल अब मेन सेक्शन के जो सबसे कम और कोई यस्ती, हाँ, जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनका वेलकम, जो नए लोग माशाल्लाह। सही क्या अज़ाब नाज़िल हुआ? क्या अज़ाब नाज़िल? क्या अज़ाब नाज़िल हुआ उस पर? मानो पत्थर आया। बेशक माशाल्लाह। खालिद बिन नुमान फ़हरी वो बदकिस्मत था जी कि वहाँ पे तो उसने बैत कर ली, 3 दिन के बाद उसने ये अल्लाह से दुआ की कि अगर ये रसूल अपनी तरफ से कह रहे हैं तो मेरे ऊपर अज़ाब नाजिल हो, और नाजिल हुआ। और वो पहले 2 भाव हुआ, कंकरी गिरी, फिर उसके बाद एक ही अज़ाब नहीं हुआ, फिर बिजली गिरी और वो जल कर खाकस्तान हो गया। नारे हैदरे। अच्छा, इन्हीं जो ये वाक़या पेश आया खालिद बिन नुमान फ़हरी लानती वाला, इस पर कुछ मिसरे मुझे याद आ गए क्योंकि मेरे पास मौजूद था। देखिए मिसरे कुछ यूं हैं, सब साथ रहेंगे तो सुनाएंगे, लुत्फ आएगा। उसके बाद अगला सवाल, यूं ही नहीं पड़ाव पड़ा है गदीर में, यूं ही नहीं पड़ाव पड़ा है गदीर में, रब को नबी से काम पड़ा है गदीर में, और फिर राहे फरार बंद है, फरारी है मुस्तरिब। राहे फरार पंजाबा तो उल्टा रोक लिया गया है ना, तो राहे फरार बंद है, फरारी है मुस्तरिब। कुदरत का इंतजाम करा है गदीर में, और फिर आया अज़ाबे अर्श फिन्नार हो गया। आरिफ बिन नुमान फ़हरी, ब्रदर यू गेट द आंसर करेक्ट। आया अज़ाबे अर्श फिन्नार हो गया, हारिस जब अपनी जिद पे पड़ा है गदीर में। तो दैट्स द थिंग, मुझे याद आ गया। और एक बेहतरीन सलवात के साथ हम इस्तकबाल करते हैं आली जनाब मुस्लिमीन, जो कि हमारे मेहमान खुसूसी भी हैं, मौलाना मंजर सादिक साहब जो हमारे बीच आ चुके हैं। एक बुलंदतरीन सलवात के साथ इनका इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सवाल नंबर 16 यानी 16 क्वेश्चन है, गदीर के दिन काफिर मायूस हो गया, इसका क्या मफहूम है? गदीर के दिन काफिर मायूस हो गया, इसके क्या मफहूम है, मतलब क्या है? देखिए ये टॉपिक अभी इंशाल्लाह इसमें बोलेंगे, लेकिन अच्छी बात है कि पहले ही सवाल में आ गया। आज के दिन काफिर मायूस हो गया, क्यों जवाब देगा? प्लीज बताएं। कुछ मुसलमान हैं जो मुनाफिक हैं, तो हम उनको काफिर बुलाते हैं क्योंकि वो विलायत अली को नहीं मानते। और अगर रसूल विलायत अली को मानने के लिए गदीर में इतने लोगों को रोक के बोले तो उन लोगों को मायूसी नहीं होगी, मतलब वो लोग को बुरा लगेगा कि गदीर में ये बोल के अली को वली बना दिया। तो ग्रेट लिटरली ये इनकम्प्लीट आंसर है, इसको हम कंप्लीट चाहेंगे कि ये थोड़ा लिटिल बिट इनकम्प्लीट। आज के दिन काफिर मायूस हो गया। क्या ऐसी एक पॉइंट ऐसा है कि जिसकी वजह से जितनी प्लानिंग काफिर ने मुनाफिकों ने सोची थी कि दिल में उन्होंने प्लान बना रखा था कि रसूल अकरम है, ठीक है, इनके बाद जैसी आंख बंद होगी तो हम ये करेंगे अब इनको खत्म कर देंगे। ये प्लानिंग किए दिल में बैठे हुए थे, लेकिन सिर्फ और हम कब्जा कर लेंगे और हुकूमत
مطلب کہنے والوں نے کہا کہ حکومت کو ایسے اس گیند کو ایسا نچائیں گے کہ دوسری طرف جانے نہیں دیں گے. لیکن ایک وجہ تھی صرف جس کی وجہ سے کافر مایوس ہو گیا, اس کی ساری پلاننگ فیل ہو گئی. بس ایک وجہ جو خاص ہے وہ ان میں رہا, جس پیچھے ان میں رہا. السلام علیکم. امام علی علیہ السلام کی عدالت کی وجہ سے کافر جو تھے وہ مایوس ہو گئے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اب جو امامت دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو, تو مولا علی ویسے ہی عدل و انصاف کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے چلے آئے ہیں. تو یہ سب دیکھ کے وہ لوگ مایوس ہو گئے تھے کہ اب جو ہماری چال ہے کہ ہم دین اسلام کو اپنے حساب سے چلائیں گے اور اپنے جو مطلب جو ان کا گروپ تھا اسی میں اس کو ایک بول کی طرح استعمال کریں گے, اس کو باہر نہیں نکلنے دیں گے, اپنے فائدے کے لیے دین کو اور اسلام کو استعمال کریں گے. اور ان کا یہ سارا پلان چوپٹ ہو گیا. وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے. سوالات کے مجمع کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا امامت کا. یہ سب دیکھ کے منافق جو تھے وہ مایوس ہو گئے. لیکن اب کافی قریب پہنچ چکے ہیں. لیکن ایک جو خاص بات جاننا چاہتے ہیں, اس ایک خاص بات کی وجہ سے کافی مایوس ہو گئے. دیکھیے سب سے بزرگ, یہ سب سے اہم سوال ہے, سب سے بزرگ جو یہاں پہ اب اس کا جواب دینا چاہیے. کیونکہ 12 اماموں کا اور آخری زمانے جب تک دنیا رہے گی تب تک کی امامت اور رہبری گنوا دی اور بتا دی, لہذا کوئی چانس منافق کے لیے نہیں تھا. نعرہ صلوات, ارے حیدر. نیکسٹ کوسچن پلیز. بہت اچھا. بس ہمیں ایڈ آن یہ کہنا ہے کہ یہ جو ولایت علی ہے یا غدیر کے دن یہ جو اعلان ہے ولایت کا کیا جانا ہے, صرف ولایت علی نہیں بلکہ ولایت ائمہ معصومین والصلاۃ والسلام کا سلسلہ, یعنی یہ سارے اماموں کی ولایت اس کا اعلان ہے. یہ اب بلا فصل امام کے بعد امام کا سلسلہ ہوگا اور سب ایک دوسرے کے ولی پھر ولایت کا اعلان یہاں ہوگا. اب یہ جو دشمن ہے وہ مایوس ہوا کیونکہ یہ عہدہ انہیں نہیں مل سکتا یا ان کی نسل میں نہیں آ سکتا, تو اس لیے اس دن دشمن مایوس ہو گیا. حالانکہ یہ جواب یہاں پہ بھی مینشن ہے اور بہت بہترین جواب دیا. اب اگلا سوال یہاں پر ہے, غدیر کے موضوع پر لکھی گئی کتاب جو کہ کافی مشہور ہے الغدیر کے لکھنے والے کون ہیں اور اس کا اردو ترجمہ ہندوستان میں کس نے کیا؟ کون جواب دینا چاہے؟ بوائز میں ادھر بھی ہمارے بھائی ہیں, ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں. خواتین میں تو کافی ہاتھ ہمیں دکھ رہے ہیں. سوال پھر سے, غدیر کے موضوع پر لکھی گئی مشہور کتاب الغدیر کے لکھنے والے کون ہیں اور اس کا اردو ترجمہ ہندوستان میں کس نے کیا؟ السلام علیکم. السلام. اس کا اردو ترجمہ مجھے پتا ہی نہیں, سے خطیب علامہ امینی. گریٹ. ادھورا جواب مانا جائے گا. یہ فرسٹ یہاں پہ پیچھے سے ایک بچہ آ رہا ہے یلو ٹی شرٹ کے ساتھ, اچھا وہ بھی آ رہا ہے. ابھی یہی بچہ نہیں دوسرا ہے. نہیں. اور کوئی؟ ہاں آگے فرسٹ. اصل کتاب جو عربی میں تھی وہ علامہ امینی نے لکھی تھی اور اس کا اردو ترجمہ شعور گوپال پوری صاحب نے کیا تھا. ماشاء اللہ. واقعی بےحد بہت زیادہ خوش ہوں کہ بہت سارے کمپٹیشن ہم نے دیکھے, لیکن یہ سوال اشنا رہ جاتا تھا جس نے پوری 20 سال لگا دیا, اتنی ساری جلدیں ہمارے الغدیر کی لکھی, ایٹ لیسٹ ہمیں ان کا نام معلوم ہونا چاہیے. اور ہندوستان میں اگر کسی نے ترجمہ کیا شعور گوپال پوری صاحب تو ہم کا یہ چیز معلوم ہونا چاہیے. اگر نہج البلاغہ کا نام ہم سنتے رہتے ہیں تو ہمیں کم سے کم یہ تو معلوم ہونا چاہیے لکھا کس نے. تو میں آئی ایم ویری ہیپی فار دس آنسر. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, بہت بہتر. اگلا سوال ہے, واقع غدیر کو کن علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے؟ واقع غدیر کو تھوڑا سا ایک دو رائٹر اگر تھوڑا سا آئینہ کی اگلا کوشچن مسند بن حنبل گڈ. اور
اور तकरीबी चटनी मसनद इब्न हम्बल ऐसा इन्होंने बताया। आगे और बता सकें? और कोई ऐड करना चाहे आगे, जब आप कोई और पसंद करके देना चाहें तो दे सकते हैं। मुस्लिम अहमद बिन हम्बल, एहतिजाज तबरसी और और कोई बताना चाहेगा? हालांकि यहाँ पर और भी नाम हैं। आंसर देखिए, बहुत सारे नाम है सिहाए सिक्का, जैसे हमारे यहाँ 4 किताबें हैं, उसी यहाँ 6 किताबें हैं, 4 किताबें हैं हदीसों की, और क्या 6 सिहाए सिक्का, उनमें बहुत सारी किताबें। उसके अलावा बहुत सारे जो अज़वाज रसूल हैं उनसे भी हदीस मौजूद है। कुल अगर देखा जाए तो हमने अपनी आंखों से पढ़ा है, खुद मौला की मौजूदगी में बता रहा हूँ, मेरे 463 उलेमा जो हैं अहले सुन्नत की, उनके हाथ से ये वाक़या नक़ल करते हुए मेरी किताबों में मैंने खुद अपनी आँख से, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ एक दो नहीं बहुत सारे हैं। हालांकि जिस किताब के नाम या जो लोगों के नाम यहाँ पर हैं, मुस्लिम अहमद इब्न हम्बल हैं या सिरातुल मुस्तक़ीम या तफ़सीर मंसूर या नहजुल ईमान जैसी किताबें जो यहाँ मौजूद है। हालांकि अल-मुसद्दरक़ अल-वसाइल और सहीहैन वाइद अल-हकीम ने है, इसी तरह ख़साइस अल-मसवाई है, तारीख़ इब्न असाकिर, जैसे हमारे खलीफा अब्दुल्लाह मीनी लिए, उन्होंने बहुत सारी कोट किए हैं। अब्दुल्लाह मीनी इंडिया ही आए थे, यहाँ पर भी उन्होंने काम किया है, बहुत ही डेप्थ में एनालिटिकल वर्क है, उसे आप पढ़ें ज़रूर अगर आपको वक्त मिले, क्योंकि यही हमारे ज़रूरत का सरमाया है। एक कुरान, दूसरा नहजुल बलागा, जिस दिन हर स्टूडेंट अपने सिलेबस में शामिल कर लेगा ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ, गो बियॉन्ड योर ओन एक्सिस्टेंस। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, मैं देखता हूँ जितनी ज़्यादा रिसर्चेस है, मुझे वक्त मिलेगा कल इंशाल्लाह तो मैं साइंटिफिक रिसर्चेस पे बात करूँगा, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किस तरह से निभात हैं। तो जो आएगा बहुत अच्छे कंटेंट कर पाएगा, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ रिसर्चेस। 5-10 मिनट में मैं आपको बहुत कुछ बता दूंगा, बट मेक श्योर दैट आप भी काम करें, एक दो नहीं, सब करेंगे सब पढ़ेंगे। अगला सवाल ये है, ऐलान विलायत के बाद रसूल अकरम ने क्या दुआ फरमाई? जवाब दें। देखिए बारी नए सेक्शन से है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बुजुर्ग जो है वही बार बार हाथ उठा रहे हैं, बहुत कॉमन सवाल है। तो उसके बाद क्या दुआ मांगी, अगर अरबी में कोई बता दे तो और ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अरबी अगर नहीं मालूम है तो उसका तर्जुमा कम से कम। आप यहाँ मेल सेक्शन में 1 हाथ उठाए, 2 हाथ उठाए, बार बार यही 2 हाथ उठाए, क्योंकि फीमेल सेक्शन में काफ़ी मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं। तो अब मैं ये क्वेश्चन पास करता हूँ फीमेल से, प्लीज़। रसूल खुदा ने दुआ फरमाई कि ऐ खुदा, जो अली को दोस्त रखे तो उसे दोस्त रख, जो अली से दुश्मनी करे तो उसे दुश्मनी रख। इसे कंप्लीट कोई कर सकता है? और भैया कंप्लीट आप बाइक वो काफी देर से कंप्लीट करें भैया। जवाब को दर्द कर दे तो उसको दर्द कर दे, फिर से बोले, जो अली को दर्द कर दे खुदा तो उसको दर्द कर दे। ओके, क्या यही जवाब है? आवाज पर रोशनी डालेंगे या आप हमें इजाजत? देखिए, अल्लाह वालिमन वाला हो, आलिमन आदा हो, ये आप लोग पढ़ा करते हैं ना दुआ में, गरीब में तो बहुत है, मौजूद मन हजला। तो ये कोई खाली तकवा को बता सकता है इसका, जो अली को दोस्त रखे उसे तू दोस्त रख, जो अली को अली दुश्मनी से रखे, जो अली से दुश्मनी रखे उसे तू दुश्मनी रख। उसके आगे और क्या कहा? एनीवन कैन ऐड प्लीज, फीमेल सेक्शन से ये बताए। या अल्लाह, जो अली को दोस्त रखे तो उसको दोस्त रख, जो उनसे दुश्मनी करे तो उसको दुश्मन रख। मंसूर मन नसरा, जो उनकी मदद करे तो उसकी मदद कर, और जो उनको तर्क कर दे, छोड़ दे, तो तू भी उसको छोड़ दे। देखिए सारे गिफ्ट इसी आते जा रहे हैं, बहुत आगे ट्राई करिए, एक दो आगे की माशाल्लाह। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन वो ये फरमाइए रसूलुल्लाह रखने का पर्पस है,
कि टेस्ट नॉलेज को टेस्ट करना नहीं, बल्कि लोगों तक पहुंचाना। कंप्लीट आंसर दिया ये कंप्लीट है माशाल्लाह। यानी खुदाया उसको दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, उसे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करे, उसकी मदद कर जो अली की मदद करे, उसको जलील और रुस्वा कर जो अली के मुखालिफ हो, और हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़े। ये इसका जवाब था माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। या अली। अगला और आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 इस सेशन की नशिस्त का आखिरी सवाल है, खुतबे के आखिर में सबको क्या हुक्म दिया गया? 3 हाथ उठे, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ से हाथ उठा रहे, जरा आप इनको आप दे माइक, जरा सुनना चाहेंगे। आखिरी में खुतबे के आखिर में सबको क्या हुक्म दिया गया? जवाब दें। कि आप इमाम की बैत करें। ग्रेट, अपने आखिर के हिसाब से बेहतरीन है जवाब। उसे मुकम्मल कोई और करे तो खुतबे के आखिर में सबको क्या हुक्म दिया गया? कोई और जवाब देना चाहेगा? आगे से रेड शर्ट, रेड टी शर्ट। सब इमाम अली को मुबारकबाद दें और सब उनके साथ बैत करें। फिर से बोले जवाब। और सबको ये कहा गया कि सब इमाम अली को मुबारकबाद दें और उनसे बैत करें। यदि ये कंप्लीट है जैसा जवाब यहाँ मांगा गया है वैसा नहीं है, इसे कंप्लीट है। कोई और जो कंप्लीट कर सकता है जवाब को? आप करेंगे, आपको ये और 3 जवाब दे चुके हैं, इसलिए हम तो आपको अब कोई- चाह रहे हैं कि आप दोनों के अलावा कोई और भी जवाब देना चाहेगा? डिटेल में कोई अगर जवाब देना चाहे? जो आगे हैं वो अपने पीछे वालों को बताएं, और जो पीछे रह गए हैं वो जो आ रहे हैं उनको उनका ये पैगाम पहुंचाएं, और जो जहाँ जहाँ जा रहा है अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने इलाके में, वो सब जाके अपने इस वाक़े को लोगों तक पहुंचाएं। ग्रेट ग्रेट, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन जवाब। यही था कि वज़ीर के पैगाम को हर मौजूद दूसरे अफराद तक और बाप अपनी औलाद तक पहुँचाए, लेकिन बात ही उस लायक नहीं थी जो अपनी औलाद तक पहुँचाते, खुद ही भूल गया। हालांकि जो रिवायात हैं तो गदीर से मुतालिक जो इवेंट्स हैं, जो तहरीर हैं, जो तारीख हैं, जो रिवायात हैं, अगर उसे देखा जाए ना, तकरीबन मैं बता रहा हूँ जो मेरे दिमाग में अब तक जितना मैंने चीज़ों का एनालाइज किया है, पढ़ा है उसके बारे में, तकरीबन मैं बता रहा हूँ आपको अहले सुन्नत जो किताबें हैं या कुतुब हैं, उनके अंदर तकरीबन 18,537 या 32 जगह पे ऐसे हैं कि जहाँ अहले सुन्नत ने इस चीज़ को नकल किया है, और तकरीबन 23,000 से ज़्यादा जो एकदम मुस्तनद रवायत है, जो सिलसिलेवार है, 23,000 से ज़्यादा जगहों पर अहले तशरीह ने नकल किया इस वाक़े को। टोटल अगर मिला दे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी उसके लोग अगर नहीं समझना, लिटरली समझेंगे, धीरे धीरे इस तरह के इवेंट होते रहेंगे, नौजवान इस तरह से जवाब देते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये पैगाम पहुंचेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, एंड लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस टू दोस्त जिन्होंने इनामात हासिल की हैं और अच्छे जवाब दिए। खुदा उनको सेहत दे, उनको और ज़्यादा इल्म उनके इजाफा करे और उनके ज़िंदगी में खुशियों को शामिल करे, उस तरह से जो जायज़ हाजात है वो पूरी हो, और इमाम ज़मान का ज़हूर के लिए जो उनके अंदर काबिशें वो कर रहे होंगे, बेशक दुआएं हैं और बहुत सारी इबादत हैं, तो इसलिए इस पर और रोशनी डाली जाए किस तरह से, क्योंकि इस इवेंट का जो एक टॉपिक है, हेडिंग दी गई थी, उसको अगर आप पढ़ें तो लिखा है गदीर से ज़हूर तक, इमाम ज़माना अजल शरीफ के ज़हूर तक गदीर का सिलसिला क्या है, ये इसको कैसे समझा जाए, गदीर का ताल्लुक इमाम महदी अजल शरीफ से क्या है, इस पर रोशनी डालने के मैं आवाज़ देना चाहूँगा आगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फैज़ अब्बास मशरी साहब को कि वो माइक पर आए और टॉपिक गदीर का ताल्लुक इमाम महदी अजल शरीफ से क्या है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन। अम्मा बाद, हाज़रीन, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और मेडियन ग्रुप की तरफ से आप तमाम अफराद की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ इस ईद-ए-गदीर
عید سعید اور ایک بہترین دن کے عنوان سے دعا گو پروردگار سے کہ اللہ ہماری اس آمد اور عبادت کو قبول فرمائے۔ صرف 5 سے 7 منٹ کے درمیان اپنی بات کو حامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں نے جیسا دیکھا ہے کہ غدیر سے ظہور تک اس کا اصل موضوع ہے اور اس کے ذہن میں بہت سے موضوعات ہیں جن کو شامل کیا گیا اور انشاءاللہ کل بھی شامل کیا جائے گا، مگر کلی اعتبار سے اس ٹائٹل سے ہمارا ذہن جاگتا ہے کہ ہمارے زندگی میں انجام دیے جانے والے ہر کام کا اختتام اگر ظہور پر نہ ہو تو پھر وہ کام عبث ہے اور ادھورا ہے۔ سال میں ہم بہت سے پروگرام کرتے ہیں اپنے عقیدت کی بنیاد پر، مثال کے طور پر فاطمیہ جو ماشاءاللہ آج پوری دنیا کے اندر زندہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے ماہ محرم کو 2.25 مہینے تک ہم انجام دیتے ہیں اس ہندوستان کے اندر۔ پھر ماہ رمضان میں 1 مہینے کی ہماری عبادت ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، شب داری ہوتی ہے، اور اب یہ ماشاءاللہ غدیر جو پوری دنیا کے اندر اس طرح سے جاری و ساری ہو گئی